رو پیٹ تو آپ لوگ رہے ہیں، جماعت میں رہ کر بھی تکلیف میں تھے، جماعت سے نکل کر بھی تکلیف میں ہی ہیں۔ لوگوں کا تو کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی بھٹکے ہوئے لوگ ہو آپ لوگ، اور آہستہ 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 میں نے آپ جیسوں کو دہریہ ہو کے مرتے دیکھا ہے، راستہ نہیں ہوتا، کوئی بے چین ہوتی طبیعت جب تک آپ کسی چیز کو پکڑتے نہیں ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ کر اس کا یہی انجام میں نے دیکھا ہے دنیا میں۔ پہلے آپ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تک مانتے رہے ہو، خلافت خلفاء سے آپ لوگوں کو اختلاف رہا ہے، اب میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بھی منکر ہو چکے۔ ان زندگی گزار رہی ہوں میں، 40 سال احمدیت میں دوزخ میں پڑی ہوئی تھی میں، اتنی خطرناک لائف تھی کہ ایک کروٹ کروٹ تکلیف میں گزارا ہے 40 سال، اور پھر 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج میں خوش، اتنی ہر دنیا کی ہر نعمت جنت میں نے ادھر ہی دیکھ لی ہے، مجھے اور کسی جنت کا کوئی ہے ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، جنت ادھر ہی ہے پوری میری، مطلب کہ میرے بچے میرے ساتھ ہے، میرا گھر بار، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت، والدین، عزیز رشتہ دار، ہر جو نعمت جو مطلب کہ وہ خواہ وہ آپ ریلیشنز میں کہہ لو یا وہ مادیت میں کہہ لو یا روحانیت میں کہہ لو، ہر چیز کی نعمت میرے پاس اس وقت موجود ہے، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اور میرے اوپر الزام لگ رہا تھا کہ اس نے کرونا ہو کے اس نے مر جانا ہے، تو دیکھ لو جی، کرونا بھی نہیں ہے ابھی تک آیا، بلکہ میں تو کہہ رہی تھی، کرونا کو کہہ رہی تھی کہ آؤ، پیک پوائنٹ پہ کرونا آیا تھا تو میں باہر جاب کے لیے نکلی ہوئی تھی، تو میرے عزیز رشتہ دار کہتے تھے تمہیں کرونا ہو جائے گا، جاب نہ کرو، میں نے کہا کہ نہیں، میں نے مرنا ہوا تو اگر میں نے وہ، اگر ان کا مسیح موعود اتنا سچا ہوا تو کرونا سے مر جاؤں گی، تو بجائے میرے مرنے کے، وہ آپ کا وہ جون سا تھا، کیا نام ہے اس کا، وہ کرونا سے فوت ہوا ہے، وہ کیا نام تھا، بلکہ بہت سارے کرونا سے ہوئے ہیں، چودھری حمید اللہ، چودھری حمید اللہ صاحب جون سے ہیں، وہ جو اصلاح و ارشاد کے کیا وہ کیا بڑے بڑے ان کے عہدے تھے، تو وہ کرونا سے فوت ہوئے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ، ہر لحاظ سے اولاد کی ٹھنڈک بھی ہے اور عزیز رشتہ دار بھی، ہر چیز سے میں بالکل خوش و خرم اور بڑی سکون کی نیند سوتی ہوں۔ تو جب بھی کوئی نام لیتا ہے تو مجھے یاد جی، میں کولی بہن جی سے مخاطب ہوں، میں وہ میری بہت ہی محترمہ بہن ہے، انہوں نے اپنے ایک پیغام میں ابھی آج ہی تھوڑی دیر پہلے ایک آڈیو میں فرمایا ہے، یہ جو لوگ جماعت سے باہر نکلے ہیں ان کو میں نے بہت بری حالت میں دیکھا ہے، قسم پرسی کی حالت میں ان کو مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، بہرحال اس طرح کی بات کی ہے کہ ان کے حالات بہت برے، انہوں نے ان کی تصویر کشی کی ہے، تو میں نے ان سے گزارش کرنی تھی کہ میں بہت ہی احترام کے ساتھ، بہت ہی عزت کے ساتھ، وہ کوئی میری بات کو مائنڈ نہ کریں، جی میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں اب اس آپ کے سامنے یہاں ٹورنٹو میں بیٹھا ہوں، آپ میرا ایڈریس لے سکتے ہیں، کنفرم کر سکتے ہیں جیسے مرضی، میں آپ کو ایڈریس، میں عرصہ 30 سال سے یہاں ادھر کینیڈا میں موجود ہوں، میں نے متواتر 20 سال جماعت احمدیہ کی اتنی خدمات کی ہیں کہ ہر قسم کے عہدے پہ میں نے کام کیا ہے، اور میں نے یہاں پہ 20 سال امام الصلاۃ کی ڈیوٹی کی ہے، میں نے یہاں پہ ٹورنٹو کے ادھر اسکاربرو ایریا میں نماز پڑھانا، جمعہ پڑھانا اور نماز تراویح پڑھانا، روزوں کے سارے درس قرآن دینا، درس حدیث دینا، یہ تمام کام میں نے کیے ہیں یہاں، ہر طرح کے اور ہر قسم کے عہدے پہ میں نے کام کیا ہے۔ اچھا، آپ اس کی ہر طرح تسلی کر سکتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ رہی بات آپ نے جو باقی باتیں کی ہیں ان کے میں نمبر وار جواب دیتا ہوں، میری بات شاید لمبی نہ ہو جائے، کہ میں نے جماعت چھوڑی ہے 2012 میں، 2012 میں میں نے خود لکھ کے خط بھیجا ہے جماعت کو کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ تعلق مت سمجھیں، وہ خط میرے پاس پڑا ہے، آپ لینا، آپ لے لیں، مجھ سے دیکھ لیں، کوئی کچھ دوستوں نے دیکھا بھی ہے،
आपके सामने रख देता हूँ मैं। आप ये बात लंबी हो रही थी इसलिए मैंने चाहा फिर और दूसरी रिकॉर्डिंग कर दूं। हाँ जी, तो देखें आपकी जमात की बेईमानी और बदमाशी कि मैंने ख़त लिखा है मीर मरकलाल खां को कि मैं आपकी जमात से अलग हो रहा हूँ, और आपकी जमात की बदमाशी और बेईमानी ये है कि इन्होंने यहाँ मस्जिदों में ऐलान कराया कि जमात ने इनको हमने उनको जमात से निकाल दिया है। मुझे हैमिल्टन से एक दोस्त का फ़ोन आया ये कन्फर्म करने के लिए, तो मैंने उसको अपना ख़त फ़ोटो का कापी भेज दी कि ये देखें ये मैंने उनको कब का ख़त लिखा है और ये ऐलान कब कर रहे हैं। इसी तरह इन्होंने मेरे बारे में ऐलानात जर्मनी में किए, पाकिस्तान में किए। आप ज़रा इंसाफ से सोचें, ये सच्चाई है? ये ज़रा मुझे इस चीज़ का सोच के बताएं। मैं अभी अब आपके सामने खड़ा हूँ, मैं कुछ चुप नहीं रहा। उसके बाद बात आती है कि मैं क्यों अलग हुआ। मेरी आपके यहाँ जितने मुबल्लिगीन हैं, आपके मुरब्बियान, मैं जितने पुराने मुरब्बियान हैं सब की मैं लिस्ट दे देता हूँ। उनके साथ मेरी कई कई घंटे मुलाकात हुई है। वो मुझे समझाने के लिए घर में भी आए हैं, बाहर कई जगह पे मीटिंगें रखी गई हैं। आखिर में मीटिंग अधूरी छोड़ के भागे हैं। आपको उनके नाम चाहिए, मैं आपको नाम दे देता हूँ। हाँ, नाम नोट कर लें, उनसे पूछ लें, हाँ जी, तसल्ली कर लें। ये भी आपकी बात का जवाब है कि हमें किसी ने निकाला नहीं है और ना मुझे कोई तकलीफ़ थी। मेरा सिर्फ इल्मी इख्तलाफ था जो मैंने उनके आगे रखा था कि आप लोगों ने किताबों में जो हेरा फेरियाँ की हैं कि किताबों में से जो तहरीफ़ात की हैं वो क्यों की हैं। वो ये रिकॉर्ड आप ले लें मुझसे, मैं आपको दे देता हूँ कि किताबों में कितनी कितनी इन्होंने मसीह मौत की किताबों में क्या क्या इन्होंने काट छांट की है, वो आपके सामने रख देता हूँ मैं। आप तो बिला वजह आप इल्ज़ामात हमें ना दें, हमें जमात ने निकाला, फलां किया, या सूखे पत्ते चढ़ गए, या वो बात आप कर रहे हैं, तो ऐसी बात कोई बात नहीं है। बहरहाल मैं आपकी ये तसल्ली कर रहा हूँ। ये जो बात मैंने अर्ज़ की है आप इसको कहीं से कन्फर्म कर लें। आप मुझे लगता है कि आप यहाँ टोरंटो में हैं कहीं, मेरा अंदाज़ा है। आप जो पुराने लोग हैं, जो अरसा मैंने आपको बताया उस अरसे के, उनसे किसी से भी पूछ लें, मर्द औरत हर कोई जानता है जिन्होंने मेरे पीछे नमाज़ पढ़ी है। इसके अलावा पीस वैली में भी आप पूछ लें, वहाँ पे 80% लोग जो हैं वो मुझे जानने वाले हैं, जो पुराने हैं, पुराने उनकी बात है। अच्छा, अब आती है बात आगे वो भी आप बतानी ज़रूरी है कि आपने कहा है कि उनकी हालत बड़ी कसम पुरसी की होती है। देखें, कोई दूसरा बंदा शायद बताए ना बताए, मैं ये आपको बताता हूँ। मेरी एज इस वक्त 80 से ऊपर है, कुछ महीने। मेरी 1942 की डेट ऑफ बर्थ है। आप हिसाब खुद कर लें। मैं हमेशा खड़े होकर नमाज़ पढ़ता हूँ। मैं आप लोगों की तरह कुर्सी पे बैठ के कभी नहीं पढ़ी आज तक नमाज़ पढ़ी। हाँ जी, ये है। और रोज़ाना मैं कम से कम 1 घंटा वॉक करता हूँ, कभी कभी 2 घंटे भी। और बाकी रही बात ये कि आपने मेरी आवाज़ से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरी सेहत कैसी है, कि मैं सारे काम अपने खुद करता हूँ, कहीं भी आना जाना हो सारे। मुझे तो कोई किसी किस्म की कोई ऐसी वो जमात की वो क्या है, जमात की तरफ से कोई अजाब नहीं आया जमात अहमदिया को छोड़ने की वजह से। ये मैं आपके सामने बैठा हूँ। अगर आप कहें तो मैं आप वहाँ पे हाज़िर होने को तैयार हूँ, आप मुझे वहाँ देख लें। हैं जी। तो बहरहाल ये भी बात जो है, आपको आपके मौलवी मुरब्बी गलत बताते हैं, आप उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। मेरा जमात छोड़ने का मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि किताबी इल्मी जो इख्तलाफ है वो ऐसे में ज़बानी की बात नहीं कर रहा। ये मैं आपको आपके सामने सवाल रखता हूँ, अगर आप सुनने को तैयार हों तो, अगर आप एक राज़ी हों तो। ये है बात। तो इसलिए ये यहाँ पे जो बात करते हैं, अब आखिर में बात को लंबी नहीं करना चाहता कि सुनने वाले भी घबरा जाएंगे। आप फरमाती हैं कि जी मुझे आप क्यों लोग इतना मजबूर करते हैं या कहते हैं। तो देखें, आपकी जमात हर साल लाखों डॉलर खर्च करती है, लोगों के घरों में जा कर पम्फलेट फेंकती है, तबलीग के लिए क्या क्या कुछ करती है, क्या इश्तिहारात देती है,
कई तरीके आजमाती है। क्या आपको पता नहीं है? मैंने 60-65 साल जमात में गुजारे हैं, क्या मुझे इल्म नहीं है? और फिर आखिर में मेरी बात भूल रहा था, मेरी रबवा में रिहाइश है। हाँ जी, आज तक, अभी तक मैंने 1953 में 53 में रिहाइश रखी थी, अभी तक स्टिल है वहाँ पे। और वहाँ मैं अपनी प्रॉपर्टी फ़रोख्त करना चाहता हूँ, उसी कोशिश में हूँ। मेरी बहुत काफ़ी प्रॉपर्टी है वहाँ पे। ठीक है जी। तो ये मेरा ख्याल है, मैंने आपको कुछ सवालों के जवाब दिए हैं कि हम मुझ पे तो कोई जमात की तरफ से ऐसा अज़ाब नहीं आया, मैं तो ठीक ठाक हूँ बिल्कुल। तो बाकी आप जिस तरीके से मर्ज़ी मेरा टेस्ट ले लें, कोई मेडिकल रिपोर्ट कहें तो वो भी भेज देता हूँ। तो बहरहाल देखें, आप छोटी छोटी बातों को दिल पे ना लें और गुस्सा ना करें, ये बात दुरुस्त नहीं है। आप, जब मैं कह रहा हूँ कि इल्मी इख्तलाफ है, तो आप इल्मी बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है? जी, ये जो आपके मुरब्बी बात सुनना नहीं चाहते, उठ के दौड़ गए हैं, बात क्यों नहीं करते? मेरी एक से नहीं, मैं आपके 10-20 मुरब्बियों के नाम दे देता हूँ, आप उनको पूछ लें। बहरहाल मेरा ख्याल बात काफ़ी लंबी हो गया, आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दिया है। क्योंकि आपने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये जितने लोग ग्रुप में हैं, इनके ऊपर पता नहीं कोई जमात अहमदिया की तरफ से अजाब आएगा या। और दूसरी एक आखिरी बात भूल गई थी, आप लोगों को मुरब्बियों ने ये दिमाग में डाला है कि जितने लोग आए हैं ये जमात ने इनको स्पॉन्सर किया है। ये भी कतन गलत है, इसके भी सबूत आपको दे देते हैं। कोई ये बात ऐसी नहीं है कि लोग रिफ्यूजी बन के सारे नहीं आए, उनके डिफरेंट मसाइल हैं। कोई बीमारी के वीज़े पे आया है, कोई बिज़नेस वीज़े पे आया है, कोई स्टूडेंट वीज़े पे आया है। तो इस लिहाजा अपने जहन को साफ रखें। अच्छा जी, मेरा ख्याल है, माजरत चाहता हूँ कि ये बात लंबी हो गई है। बात ये है कि वो कोरोना से मरने वाले तो बाद में गिन लेंगे, अगर तारीखी जो सच्चाइयाँ हैं वो तो बयान करनी पड़ती हैं। अभी जो खलीफा सानी की जो 10-11 साल जो एड़ियाँ रगड़ रगड़ के उनको जिस हालत में बीमार होता है, उनकी वफात हुई, वो सबके सामने है। वो अभी भी उसके बाद मिर्ज़ा नासिर साहब बेचारे, जो मुझे तो जब भी कोई नाम लेता है तो मुझे याद आता है कि फूल तो 2 दिन में बहारे जहाँ फिजा दिखला गए, हसरतुन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। वो बेचारे ने भी शादी की थी तो 1.5 महीना में अभी वो, मेरा ख्याल है दुल्हन को अच्छी तरह देखा भी नहीं होगा, तो वो सुधार गए। तो इसी तरह मिर्ज़ा ताहिर जो है वो भी फालज में मुब्तला हुए, आखिरी कि 2-3 साल 4 साल कितने वो भी बुरे हाल में गुजारे। फिर उसके बाद ये कोरोना में कई लोग उनके मारे गए, लंदन में भी, रबवा में भी। तो बहरहाल अभी उनके नाम अगर गिनूंगा तो फिर बात लंबी हो जाएगी। अब मुझे ये बताएं ज़रा कि अगर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब को जब पहले वफ़ात मसीह के, हयात मसीह के कायल थे, फिर वो वफ़ात मसीह के कायल हुए और उन्होंने दावा कर दिया, उनको मसला होने लग गया कि वो अब उनके अकायद से जो पहले थे, हयात मसीह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम हुई, उनका नहीं कायल रहे। ठीक है ना, हिस्ट्री यही कहती है ना, तारीख। उसके बाद वो उन्होंने छोड़ दिया और उसको और वफ़ात मसीह के कायल हो गए, राइट? एज फार एवरीबडी नोज दैट, राइट? हम सबको वही पता ना। अच्छा, अब वो जो जब बाद में हयात मसीह थे उससे वफ़ात मसीह पे आ जाते हैं, तो उनको छोड़, फिर बस ठीक है, उनका अकीदा उन्होंने बदल लिया था ना उन्होंने अपना। तो उनको जितना वो मसले मसाइल थे उन्होंने जब वो छोड़ दिया, तो फिर उन्होंने ये जो 85 किताबें क्यों लिखी थी? फिर उसके बाद उन्होंने स्टॉप नहीं किया। उसके बाद मुसलसल 85 किताबें लिखी, पम्फलेट, इश्तिहार, मनाजरे, लोगों से गुफ्त शनीद, लोगों से बातें। क्यों? फिर किस लिए? जब एक मसला ख़त्म हो गया था जो उनको था, वह हयात मसीह से वफ़ात मसीह पे आ गए, तो उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए था। उनको तो मसला ही नहीं फिर कोई होना चाहिए था। आपकी दलील की रूह से जो आप कह रही हैं कि उनको शिकायत थी कि वो तो याद नहीं है, वो तो फिर बस छोड़ देते। उन्होंने तो 85 किताबें लिखी, वो शोर मचाया दुनिया में, हर किसी को इतना शोर ही नहीं मचाया, बल्कि लानत 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 करके 1000 बार लानत भी लिख चुकी लोगों के ऊपर। दूसरों को ज़ुरियातुल बकाया भी कह दिया, दूसरों को उन्होंने ज़ुरियातुल बकाया का मतलब पता है ना क्या है? रंडियों की औलाद, कंजरियों की औलाद, ये लफ्ज़, इसका तर्जमा है, मैं आपको तर्जमा बता रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद इतना ही नहीं, फिर उन्होंने मुसलसल जो है मनाजरे किए, मतलब उनके साथ उनको
कैसी कैसी जो है उनको पेश गोइयाँ की, मौत की, लोगों को उनकी तबाहियों की, जल्जलों की, मतलब उन्होंने दुरस्मीन उठा लो और उसमें से जो तो तबाहियाँ हैं वो सिर्फ इसलिए कि उन्होंने माना नहीं उनको। क्यों? जब उनका मसला ख़त्म हो गया था, उनको जो उन्होंने मानना था मान लिया, तो फिर इन सब की क्या ज़रूरत थी आपकी दलील की रूह से? फिर इन सब की उन्हें भी ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसे करें, जो इतराज़ आप हम पे कर रही हैं ना मुसलसल सुबह से बिला, वो इतराज़ पहले आप में इतना अगर जिगरा है ना, तो आप उनसे करें अपने बानी सिलसिला से पहले, और पहला वहां से पकड़े, बिस्मिल्लाह कीजिए अगर आप में हिम्मत हौसला है तो, और हम आपके साथ हैं। पहले वो करें, पहले अगर वहां से आपको जवाब मिल जाता है तो फिर हम दे देंगे आपको। इसका मतलब है आपकी दलील की रूह से उनको भी बड़ी आग लगी हुई थी, बड़ा तड़प रहे थे, बड़ा जल रहे थे, कोई सुकून नहीं था, कोई उनको ये नहीं था, उनको चैन नहीं आ रहा था, वो बर्बाद करना चाह रहे थे दूसरों को। मतलब जितने आपके अल्फाज हैं वो तमाम के तमाम इधर भी फिट आते हैं। थोड़ा सा बस रुख ज़रा इधर कर दीजिए, सीन मैंने आपको दिखा दिया। ज़रा बराहे करम अपनी तमाम ऊपर सुबह की ऑडियो जो है ना, वो हमारी तरफ से तोपों का रुख जो है मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब की तरफ कर दीजिए, ताकि हम ज़रा देखें कि आप में कितनी इखलाक की ज़रूरत है सच का सामना करने की। हमें तो आपने बड़ा मतलब कह दिया ना शेर बन के, बार बार सुबह से आप यही इल्ज़ाम तराशियां करती जा रही हैं, ये हो गया वो हो गया, जबकि वही चीज़ें आप में मौजूद है। अपना गिरेबान क्यों नहीं झांकते? आप लोगों को हक हासिल है ये, लेकिन हमें नहीं। क्यों भाई? किस लिए? कन्विंस करने लगी हुई हूँ आप लोगों को। कन्विंस करने तो आप लोग लगे हुए हैं। मैं तो नहीं किसी को कन्विंस कर रही ना। हर एक का अपना डिसीजन है, आप लोगों ने डिसीजन लिया। बात ये है कि डिसीजन लेकर तो फिर रोना धोना और मतलब ये कि ये सारा कुछ करना, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। कि मतलब लिया तो आप खुश रहे अपनी जिंदगियों में, फिर मसले क्या हैं? ये सारे ही जो ग्रुप में बहुत सारे लोग जो बैठे हुए हैं, वो उनको जमात से मसला था, वो निकल गए हैं। तो मुझे तो सच पूछे तो मुझे तो कोई उसमें दिलचस्पी भी नहीं है कि आप लोगों को मसले क्या हुए थे।